everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 29 September 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देख रहे हैं, of course before we proceed to understanding कौन से important articles हैं the Hindu या Indian Express में, we will see आज का जो डेट है इस दिन में क्या मनाते हैं. हम मनाते हैं the World Heart Day. दिल का दिन है आज, राइट. सो इस दिन का थीम क्या है? सो वी सी द थीम इज डोंट मिस अ बीट. नाउ हार्ट डिजीज इज वेरी वेरी कॉमन इफ वी टॉक अबाउट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसे कहा जाता है कि एवरी मिनट 8 people die, okay, due to cardiovascular diseases, मतलब heart related diseases, cardiovascular diseases in the South East Asia region. अगर हम सिर्फ एशिया रीजन की बात, साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात करें, so you see then वर्ल्ड में अगर हम इसी डेटा को देखें, it's definitely going to be much larger. राइट. सो ये आज का दिन है, आज का थीम है, ये आपको याद रखना है. एंड दिस ईयर इट इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 25th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो पहली बार ऑब्जर्व किया था 2001 में और अब हम ये इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट स्टैंड्स. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द फर्स्ट आर्टिकल एंड दैट वी ऑल नो कल बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैच था, तो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से एमसीक्यूज यहां से भी आ सकते हैं ये डिस्कस करते हैं, राइट. सो लेट्स सी विद रिगार्ड टू एशिया कप. नाउ व्हाट इज एशिया कप? दिस इज द मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट जो हर 2 साल में एक बार होता है टू बेसिकली टेल एशिया में विच इज द लीडिंग कंट्री विद रिगार्ड टू क्रिकेट. Now, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? This is the Asian Cricket Council (ACC) and this was established in 1983. पहली बार ओके हम देखते हैं 1983 में हुआ था. ओके एंड फर्स्ट हेल्ड अ ईयर लेटर एट शारजा इन यूएई. शारजा जो है यूएई में है. Now, what is the format in which this is played? The format we saw was ODI, 50 overs का one day innings होता है, right? That's a normal one. But, okay, हम देखते हैं कि कल का जो मैच था, it was in a T20 format, right? So let's see what exactly it is. ये पहले जो 12 एडिशंस हुए, that happened in the 50 ओवर, 50 ओवर वाला था. But the format has changed, okay? If we see between T20 and ODI, ये change होते रहता है. तो अभी तक हम देखते हैं 2016 के बाद they started taking alternatively T20 and 50 overs. तो 2016 में हम देखते हैं we had the T20, then 2022 में हुआ and then we saw in 2025 यानी इस साल again it was in the T20 format. So you have to remember these basic facts. कितने edition, कौन सा वाला edition था ये? This was the 17th edition. Okay, so 12 editions जो हम देखते हैं पहले के, it happened all with regard to 50 ODI, then alternatively और 2 हम editions देखते हैं, यानी कि 14 editions have been in the ODI format and only 3 editions have been in the T20 format. ठीक है. Now let us see the winners of this game and everything about it. तो most successful cricket team कौन सी है? According to this Asia Cup, India has won this 9 times. First time winning in the year 1984. तो हमने देखा था 1983 से they started this, right? And हम देखते हैं 2025 में the first and the latest both are won by India. Total 9 times. Further, Sri Lanka has won it 6 times and Pakistan has won it twice. So अभी तक याद रखना सिर्फ these 3 countries have won this particular Asia Cup. कोई दूसरी कंट्री ने विन नहीं किया. Now with regard to where was the host of this country, where was the host of this game? This happened in UAE, ठीक है, United Arab Emirates, and ये जो finals था, it was between India and Pakistan, and we know India won this by 5 wickets, right? Now player of the series कौन थे या man of the series कौन थे? That was Abhishek Sharma, all right. Then the most valuable player is Kuldeep Yadav, ठीक है, MVP. Further, highest wicket taker of the tournament कौन थे? Kuldeep Yadav with 17 wickets. Highest run scorer of the tournament, if we talk about, was Abhishek Sharma, again with 314. So you have to remember this, right, with regard to this particular game. Game changer of the match कौन थे?
Shivam Dubey, who had 33 of 22. Okay, now these are some important facts that you have to remember, that you have to mug up, okay, with regard to the Asia Cup. तो इसके बारे में हमने देखा है. We also saw कि लास्ट में जब ट्रॉफी देने की बारी आई, इंडिया refused to take the cup from the Asian Cricket Council के जो चेयरमैन थे, मोहसिन नकवी, right? He's also the Pakistan Cricket Board के चेयरमैन थे. So that also shows how India is performing or maintaining its distance from Pakistan, especially after when you talk about the Operation Sindoor, or you can talk about the Pahalgam attack. So ये distant रखा. And another reason was with the recent post of Mohsin Naqvi. Okay, तो उन्होंने कुछ ऐसे post डाले हैं social media में, which India did not find it acceptable. So that is why we did not take the trophy, okay, from him. Okay, he also was holding the trophy. हमने भी trophy नहीं लिया. 45 minutes delay हो गया the award giving ceremony and so this is with regard to how cricket and politics are also interconnected, right? Let's now proceed to the first article. The second article. The second article is with regard to a satellite जिसके 10 साल operations में हुए हैं. So कब ये launch हुआ था? This was launched in 2015. Now what is this satellite mission? What is this observatory? Let us quickly see. तो इंडिया का ऐसा पहला dedicated space astronomy observatory है. That means space को observe करने वाला कोई एक satellite है. Now इस satellite का नाम है एस्ट्रोसैट, और इसके कितने साल पूरे हुए? 10 साल, यानी 15 से लेके 25 तक 10 years आर कंप्लीट. सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग और रीडिंग अबाउट दिस. नाउ किसने इसको लॉन्च किया? दिस वाज लॉन्च्ड ऑन September 28, 2015 on the PSLV C30 XL, यानी extra large. This is okay, बड़ा सा PSLV. PSLV was used for many satellite launches before we had the GSLV being operational. तो PSLV की बात करें, okay, it was called as the workhorse of ISRO because बहुत सारे important missions of ISRO were taken by this polar satellite launch vehicle. अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें, अगर हम बात करें मंगलयान की, right, Mars orbiter mission, so we were using PSLV. But अभी जो recent वाले जो हम देखते हैं, या अगर हम use कर रहे हैं for moon missions और Venus के missions, शुक्रयान, so we are now planning for the LMV3 जिसको हम GSLV कहते हैं, GSLV Mark 3. ठीक है, सो दिस इज द न्यू वंस फॉर द न्यू मिशंस. ये होता है. पुराने वाले जो हम देखते हैं मेनली 2015 ऑनवर्ड्स और उसके पहले इट वाज PSLV दैट वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, नॉट लाइक दे डोंट यूज इट नाउ. ओके, और हमने देखा भी तो 101st मिशन जो था PSLV का, ठीक है, PSLV itself failed. So that also was a very shocking news with regard to space. Now, ये originally 5 years के लिए था, but it is still giving us valuable data. Okay, 5 साल का मिशन था, but still after 10 years it is important for us. Now, क्या-क्या यहाँ पे observations करते हैं? Now, with regard to this astrosat, हम ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत वाइड रेंज, यानी कि यूवी रेज, ओके, अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें, विजिबल रेंज की बात करें, एक्स रेज की बात करें, ऑल ऑफ दिस वी आर ऑब्जर्विंग, ओके, बैक इन द स्पेस. फर्दर ये ऑब्जर्व भी कर रहा है ब्लैक होल्स को, बहुत सारे ऐसे स्टार्स कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार्स, प्रोक्सिमा सेंटोरी एंड बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सीज को ही ऑब्जर्व कर रहा है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी. ठीक है. नाउ रिसेंटली दे हैव आल्सो डिटेक्टेड फार अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स, इसको FUV कहते हैं. ओके, तो जो बहुत दूर है, which is like 9.3 billion light years away. So this is talking about the कितना distance से दूर है ये. So this is mainly telling us what is the significance of the astrosat. Now बहुत सारे यहाँ पे payloads हैं. So अलग अलग detections करने के लिए you require number of gadgets, right? So these are called payloads. So you have ultraviolet, X-rays, imagers, telescope, ये सब monitor करने के लिए अलग अलग payloads हैं. और ये किसका ये एफर्ट है? दिस इज डन बाय इसरो बट विद द हेल्प ऑफ वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस. तो खाली इसरो ने मदद लिया है बहुत सारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट से. टाटा इंस्टीट्यूट की
बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें, ऐसे करके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की मदद भी ली है. We also have seen 2 institutions coming from Canada and UK, so it's not only India. We've also taken the help, so collaborations, space collaborations with other countries भी इसमें देखा जाता है. तो ये पूरा था एस्ट्रोसैट के बारे में, जो 10 साल से ऑपरेशंस में है और उनके जो फीडबैक और सब है ये हमने देखा. Proceeding to the next article, और ये है हमने देखा था the 80th UNGA असेंबली हुआ था रिसेंटली, राइट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुआ था न्यूयॉर्क में. सो एस जयशंकर हम देखते हैं ये बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं वेरियस अदर कंट्रीज के साथ. ओके, सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट 3 मेजर इश्यूज के बारे में हमने स्ट्रॉन्ग opinions रखा. What are these 3 issues? The first one is with regard to Israel की criticism on Gaza. ठीक है, जो वॉर चल रहा है गाजा में, इसको बंद करने के लिए हमने एक बताया. द सेकेंड थिंग विद रिगार्ड टू यूएस के टैरिफ्स, है ना, यूएस ने जो अलग अलग टैरिफ्स लगाए हैं, H1B वीजा, ऑल ऑफ दैट अगेन दैट इज बीइंग स्पोकन अप, ओके, बाय इंडिया. एंड द थर्ड दैट वी सी इज यूनाइटेड नेशंस में कोई रिफॉर्म्स नहीं है, राइट. 1945 में से कैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहा है. Those P5 have still been P5, है ना. We are not giving more representations. And some countries are underrepresented. तो इसीलिए हमने ये बोला है कि we are also wanting to have some reforms in the United Nations. Now इसके लिए India has also seen meeting with other groups. Okay, तो other कौन से ग्रुप्स के साथ हमने बातचीत की है, ये सब इस आर्टिकल में बताया है. So quickly we will see what are the different bodies that India has met with. Apart from that, a question to you. हमने देखा है recently पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया था बाय सम कंट्रीज. ये कंट्रीज ओके मेनली G7 के कंट्रीज जिन्होंने अभी तक रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को, जल्दी से आप ये कमेंट सेक्शन में डाल दो. विच आर द G7 countries that have recognized Palestine? That is your question. Okay, let's now proceed to what are the groupings that S J Shankar has had meetings in with. First one is BRICS के साथ तो है ही. Okay, ब्रिक्स के अलावा हम देखते हैं IBSA. IBSA क्या है? दिस इज इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका. सो 3 कंट्रीज यहाँ पे साथ में मिलके दे वांट टू बी चेंजिंग और गेटिंग सम UN रिफॉर्म्स एंड ये कॉपरेट भी करना चाहते हैं ऑन अदर सेक्टर्स लाइक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. द सेकेंड ग्रुपिंग इज CELAC. Okay, CELAC is what? कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड करेबियन स्टेट्स. ओके, तो ऐसे 33 ऐसे कंट्रीज हैं जो करेबियन या साउथ अमेरिकन या सेंट्रल अमेरिकन ग्रुपिंग्स का है एंड ये 2011 में बना था. तो इनके साथ भी इंडिया इज कोलैबोरेटिंग फॉर द सेम. सो इफ you'll see the issue that we have spoken is with regard to global south cooperation. अभी what do you understand by the term global south cooperation? Okay, this means the developing countries or the least developing countries usually found in the southern hemisphere. Usually found in the southern hemisphere. इसका ये मतलब नहीं कि सभी जो southern hemisphere वाली countries हैं वो डेवलपिंग है या लीस्ट डेवलपिंग है. ओके, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, राइट, इट इज या सिंगापुर की बात करो, दे आर नॉट least developing or developing, they are developed countries, right? लेकिन global south is a general term, a connotation given to developing या least developing countries जो mainly you find them in the southern hemisphere. Is that clear? So ये global south के cooperation. So you will see that is why कि ये Latin American, Caribbean islands, Central American, जहाँ पे you will find it is mainly the global south countries. Okay? थर्ड वाला है सीका. सीका इज विद रिगार्ड टू सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम्स. ठीक है, तो ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है, जैसे कि कोस्टा रिका, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुए, पनामा, ये कंट्री सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज. ऑलराइट, सो दैट इज सीका. तो इनके साथ भी एक कनेक्शन बनाए रख रहा है. द नेक्स्ट वन वी हैव इज FIPIC. FIPIC का फुल फॉर्म है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज. जो पैसिफिक ओशन में आइलैंड कंट्रीज हैं इनके साथ, सो दे आर मेनली क्लोजर टू इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में. ओके, सो देयर इज कुक्स आइलैंड्स, देयर इज
टोंगा, मार्शल आइलैंड्स, किरिबाती, पापा न्यू गिनी, ओके, पलाउ, ठीक है, ये बहुत सारे कंट्रीज जो है आइलैंड नेशंस है मेनली पैसिफिक ओशन में, तो इनके साथ भी ये कोऑपरेशन कर रहा है. The next one we have L69. Okay, now L69 is with regard to 42 डेवलपिंग कंट्रीज का एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, दैट इज विद रिगार्ड टू अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, पैसिफिक, बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं. नाउ यू माइट बी थिंकिंग 42 ग्रुप कंट्रीज है पर 69 क्यों लिखा है? दैट इज बिकॉज दिस वाज अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन दैट वाज गिवन, ओके, L69 जो नंबर के कारण, तो इसीलिए L69 ये नाम पड़ा, बट अदरवाइज यू जस्ट हैव 42 मेंबर कंट्रीज जो मेनली बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में मिलता है. जैसे कि अगर हम एशिया की बात करें, अमेरिकास की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो जब यहाँ पे लीस्ट डेवलपिंग जो ग्रुप्स हैं वो साथ में चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आए ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव बने, ताकि वो वाइडन करे अपना रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज अभी सब हम देखते हैं कि वो P5 कंट्रीज हैं और जो बाकी के 10 कंट्रीज हैं इनके पास ज्यादा पावर भी नहीं है. सो दैट इज व्हाई द रिफॉर्म्स दैट दे वांट. एंड द लास्ट वन दैट वी सॉ इज C10. Okay, C10 is Committee of 10. So Committee of 10 is with regard to African Union members जैसे कि अल्जीरिया, कॉन्गो, केन्या, लिबिया, नमीबिया, तो ये सब कंट्रीज हैं इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग में. ये भी चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स हो. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है? We've seen these particular groupings जो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हो, उनके जो डिमांड्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, ये डिस्कस ज्यादा करें in the United Nations Security Council as well as to make some changes to widen representation of these groupings. वैसे एक और ग्रुप है called as G4. ओके, G4 भी चाहती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बढ़ा दिए जाए. ओके, सो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ G4. कैन यू टेल मी व्हिच आर द अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 4 या G4 जो एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? दिस इज योर क्वेश्चन. G4 के कंट्रीज जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. Proceeding to the next article. अगला आर्टिकल है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में. ओके, एंड इस एक्ट को लगाया है सोनम वांगचुक पे. Let us quickly see what is the case in this regard. Okay, so हम देखते हैं September 24th, ठीक है, एक प्रोटेस्ट हुए. नाउ प्रोटेस्ट कहाँ पे हुए? प्रोटेस्ट हुए लद्दाख में. ठीक है, तो लद्दाख प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? लद्दाख प्रोटेस्ट कर रहा है फॉर 2 थिंग्स. एक तो उसको ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, ओके, ज्यादा पावर्स चाहिए. सो जो अभी एक वो यूनियन टेरिटरी है, राइट नाउ एज वी सी जम्मू कश्मीर is a UT but it has a legislative assembly also. तो इसको ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, ओके, स्टेटहुड चाहिए, as well as it wants to have this title of 6th schedule. ठीक है, तो क्या है? एक है स्टेटहुड की डिमांड, अभी वो यूटी है विदाउट एनी मच पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा कब्जा है इसमें, राइट, पावर है इसका, तो यूटी नहीं, वो स्टेटहुड चाहता है. ठीक है, अभी यूटी है, फिर स्टेटहुड चाहता है. एंड द नेक्स्ट इज 6th शेड्यूल चाहिए. सो व्हाट इज 6th शेड्यूल? आई बी टेलिंग यू दिस इन अ बिट, बट लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस. तो प्रोटेस्ट चले, प्रोटेस्ट में व्हाट हैपेंड इज पीपल लॉस्ट, सम ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स विद रिगार्ड टू टीयर गैस और सब हुआ, तो 4 लोग मारे गए एंड अबाउट 50 पीपल वर इंजर्ड. ओके, नाउ ये प्रोटेस्ट जब हुए, हम देखते हैं कि सोनम वांगचुक, now who's Sonam Wangchuk? He is a climate activist. Okay, I'm sure everybody has heard of this name at least. Okay, so Sonam Wangchuk जो है, जो ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, इनको फिर अरेस्ट किया था, डिटेन किया था. किस एक्ट के दौरान? हमने अभी बताया NSA एक्ट के दौरान. So NSA एक्ट के दौरान he was arrested, he was detained. Okay, now quickly let us see what is this National Security Act. National Security Act आया था 1980 में. So it was enacted in the year 1980. ये act is a preventive detention law, stringent, most strict preventive detention law. तो what is preventive detention law? Preventive जो है ये एंटिसिपेटरी, मतलब किसी को अरेस्ट किया जा रहा है बिफोर द एक्चुअल थिंग हैपेंस, बिफोर द क्राइम इज कमिटेड.
हमको लगता है कि दिस पर्सन कुड डू समथिंग वर्स, इसीलिए इनको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो NSA is a preventive detention, not a punitive. Punitive मतलब जो होने के बाद, एक्ट कमिट होने के बाद जो अरेस्ट होता है, इसको बोलते हैं punitive. But this comes under preventive. Now, which article are we talking about? Which preventive detention आता है? कौन से fundamental right में आता है ये आता है fundamental right 22 में कि Again, arrest can be made under preventive detention. Mainly मान लो कोई terrorist है, राइट तो अगर कोई टेररिस्ट, हमको पता है कि ये कोई बॉम्ब बना सकता है मॉल में, उसको हमारे पास कुछ न्यूज है कि वी हैव नोन दैट दिस पर्टिकुलर टेररिस्ट हैज मेड दिस बॉम्ब एंड ही हैज पुट इट इन सम मॉल. नाउ वी नीड टू एंश्योर एंड वी नीड टू एक्ट स्विफ्टली, इसीलिए वी कांट वेट फॉर द बॉम्ब टू एक्सप्लोड एंड देन अरेस्ट दिस पर्सन, राइट. तो इसीलिए हम देखते हैं कि हम इसको अरेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि हमको शक है कि इसने बॉम्ब लगाया है, बिकॉज वी हैव सम इंफॉर्मेशन. सो सिमिलरली प्रिवेंटिव डिटेंशन हेल्प्स to do what? It helps with regard to our security of the country, to maintain public order, essential supplies को control करने के लिए, हमारी relations maintain करने के लिए. That is why preventive detention is important. Okay, तो यहाँ पे center या state, central government या state government can arrest or detain individuals अगर वो threat कर सकते हैं for these cases. Now, किसके पास ये power हो सकता है? As well, district magistrate और police कमिश्नर के पास भी ये पावर्स हो सकते हैं. Now let's see कि क्या ये एक्ट कब आया था, इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके प्रोविजंस देखते हैं. सो फर्स्टली हम देखते हैं कॉलोनियल टाइम्स में भी ऐसा ही एक लॉ आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन टू यू इज रॉलेट एक्ट कौन से ईयर में आया था, ये आपको मुझे बताना. व्हाट वाज द ईयर इन विच रॉलेट एक्ट वाज enacted. Okay, तो ये सर सिडनी रॉलेट करके थे जिनके नाम से ये रॉलेट एक्ट आया था. फर्दर, रॉलेट एक्ट इज नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ द एक्ट. ओके, तो एक्चुअल नेम ऑफ द एक्ट जो है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. थोड़ा सा 3-4 वर्ड्स हैं इसमें. यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट इज एक्चुअली नेम, अ डब्ड नेम गिवन टू दिस एक्ट बिकॉज सर सिडनी रॉलेट ने एक्ट लेके आए थे. हम इंडियंस इसको ब्लैक एक्ट बोलते थे. We used to call it the black act because it was again arresting individuals based on suspicion कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये अरेस्ट किए जाते थे एंड 2 साल अरेस्ट किए जाते थे विदाउट अ लॉयर, विदाउट अपील. तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ था जो ब्रिटिश लेके आए थे. नाउ इंडिपेंडेंस के बाद हमने एक और एक्ट लेके आए थे विच इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950. ओके, सो ये भी ऐसा ही कुछ एक्ट है, मेनली गवर्नमेंट के खिलाफ आप बात, मतलब यू नो यू कांट स्टेज और एनीथिंग वी फील दैट इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किए जा सकते हैं टू कैन स्टॉप टेररिस्ट एक्ट्स एंड ऑल. नो, तो इसीलिए ये चाहिए होता. नाउ उसके बाद हम देखते हैं मीसा, एक नया लॉ आया. ओके, पर इसको मिसयूज ज्यादा किया था स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी. ये मीसा जो है इसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. नाउ रिमेंबर दिस इज नो मोर एन एक्ट बिकॉज ये रिपील हो चुका है 1978 में. बट रिपील होने के बाद भी एक नया लॉ आया विच इज द NSA जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ना. सो नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है ये 1980 में आया. ओके, और अभी भी ये चल रहा है. तो इसमें क्या क्या बताया है जल्दी से थोड़ा देखते हैं. फर्स्टली, जो भी तुम जब अरेस्ट करते हो यू नीड टू कम्युनिकेट टू द पर्सन. ओके, जो डिटेनी है उसको तुमको बताना है कि तुमको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है एंड दैट शुड हैपन ईदर विद इन 5 days, मैक्सिमम 15 दिन के तक तुम उसको जेल में बंद रखो एंड विद रिगार्ड टू 15 days यू कांट इन्फॉर्म हिम ऑल्सो. ओके, सो 5 to 15 days का इतना तुम्हारे पास विंडो है टू टेल देम व्हाट दे हैव डन रॉन्ग. ओके, सेकेंड, detainee can make representation to the government. ठीक है, that's the second point. Next is advisory board, okay, which will have a high court के judge. ये review करेगा within 3 weeks कि जो arrest किया है क्या वो lawful है, क्या वो करना चाहिए, क्या वो threat है. तो ये कौन करेगा? एक advisory board करेगा and they will review this within 3 weeks. Okay, और release भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि no, this has not, there's no sufficient cause to actually prove कि हाँ इनके
थ्रेट है या इसने कुछ गलत किया है। ओके, डिटेंशन, मान लो कि एडवाइजरी बोर्ड ने बोला हाँ ठीक है, दिस इज फेयर इनफ कि तुमने अरेस्ट किया। डिटेंशन कितना ज्यादा रख सकते हो? दैट इज मैक्सिमम यू कैन कीप फॉर 12 months। ओके, सो दैट इज व्हाट ओके कैन बी रिवोक्ड। मतलब पहले भी अगर लगा कि ठीक है इसने कुछ नहीं किया, उसको बंद भी कर सकते हैं, मतलब उसको निकाल सकते हैं, बट अदरवाइज 12 months, 1 साल तक तुम उनको अंदर रख सकते हो। Now, there are some limitations or challenges to this. Let's quickly see what are they. Now, there is no right to legal representation before advisory board. So, यहाँ पे अपील नहीं हो सकता, कोई representation नहीं हो सकता with regard to the advisory board. ठीक है? The second thing, government can hold facts citing public interest. मतलब हम गवर्नमेंट पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देगी सेइंग कि ये पब्लिक के लिए खतरा है, हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। सो दैट ऑल्सो इज अनदर प्रॉब्लम वेयर गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। ठीक है, थर्ड वन, डिस्क्रिशन किसके पास ज्यादा है? ऑफिशियल्स के पास ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर। तो ये इसीलिए ये एक्ट को देखा जाता है एज अ क्रूअल एक्ट, एज अ वेरी मिसयूज कर सकती है गवर्नमेंट, ऐसा वो एक्ट है इसीलिए। बट एक साइड आप देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट भी इसीलिए है बिकॉज इट इज हेल्पिंग अस टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, टू सिक्योर द पब्लिक ऑर्डर ऑफ द कंट्री, सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज why we see that both criticism and the positives as well. Now, सोनम वांगचुक जिसको अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, what are the options that are available to them? Okay, तो एक तो है ये रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है, लाइक वी सॉ इन प्रोविजंस एंड अंडर प्रोविजंस। एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करेगा, हाई कोर्ट जज रिव्यू करेगा, तो 3 हफ्ते रुक भी सकते हैं, या वो खुद इसको चैलेंज कर सकते हैं under the fundamental rights that are provided to him under Article 32 या Article 226 कि मुझे illegally detain किया है ना? So habeas corpus, right? So यहाँ पे challenge कर सकता है कि this has been done, legal क्या है? What is the proof that I have done something wrong, right? तो यहाँ पे ये हो सकता है। Further, government खुद चाहे तो वो भी revoke कर सकती है, बंद कर सकती है, उनको रिहा कर सकती है। So these are all the options that we've discussed. Now, क्या ये पहली बार ऐसे हो रहा है? The answer is no. This has happened so many times, right? So अगर हम अमृतपाल सिंह केस की बात करें, जो radical Sikh preacher खालिस्तान, right? We've seen that as well. तो इनको डिटेन किया है। 2017 चंद्रशेखर आजाद, लेकिन उनको रिलीज किया था आफ्टर सुप्रीम कोर्ट व्हेन दे इंटरवेन। बहुत सारे एंटी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोटेस्टर्स थे उनको भी NSA के अंडर बुक किया था, खलीफ खान। सो दीज आर सम रिसेंट केसेस की बात करें वेयर NSA वाज यूज्ड। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ मैंने आपको बताया था कि जो 6th शेड्यूल है, दैट वाज वन सच डिमांड ऑफ द प्रोटेस्टर्स ऑन September 24th, राइट? तो जल्दी से देखते हैं कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डिमांड, व्हाट इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू टेल, और व्हाट आर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन दिस 6th शेड्यूल। लेट्स क्विकली सी दैट। ओके, ये जो 6th शेड्यूल है ये कहाँ पे लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 में लिखा है। Now, what is this 6th schedule? Remember, ये सिर्फ 4 ही states में है, that is AMMT. Okay, what is the short form? This is a short form. So remember, Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura. सिर्फ इन 4 states of India में you have the 6th schedule. Under this 6th schedule, हम इन states में एक बॉडी बनाते हैं जिसका नाम है ADCs, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो मान लो कोई एक सेंट्रल लॉ लेके आ रही है गवर्नमेंट, पहले ये जो लॉ इन रीजन्स में लागू होने से पहले ये ADCs चेक करती है कि शुड दे बी applied to the country, applied to their state, applied to this region. Why are we giving them powers? Why are they having the powers to even refer कि ये law लेके आना चाहिए इस state के लिए? That is because ADCs, या अगर हम ये 4 states में बात करें, there is a sizable amount of tribal population. There is a sizable amount of tribal population. तो अगर हम जो majority laws हैं या जो general laws हैं इन regions में apply करें,
ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनका जो वे ऑफ लिविंग है ये बदल सकता है, राइट? दे विल बी असिमिलेटेड इन द सोसाइटी, क्लियर, बट ऐसा ना हो कि वो एक सम सॉर्ट ऑफ बाधा हो जाए या एक कंप्लीटली डिफरेंट उनको ग्रुपिंग बना दिया जाए. सो दैट इज व्हाई वी सी दैट AMMT में जो स्टेट्स हैं इसमें बिकॉज ऑफ ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, वी डोंट वांट देम टू डायरेक्टली कम इन द मेन स्ट्रीम अगेन सच अ वे कि उनके जो कैसे वो वे ऑफ लिविंग है उनका बदल जाए, उनका बंद हो जाए. वी वांट टू रिस्पेक्ट देयर कल्चर, वी वांट टू रिस्पेक्ट देयर ओन ट्रेडिशंस, देयर ओन कस्टम्स. तो इसीलिए हम यहाँ पे सोच समझ के ही लॉज लेके आते हैं. और ये कौन डिसाइड करता है? ये ADCs डिसाइड करते हैं, जो एक 30 मेंबर की बॉडी है जिनका टर्म है 5 years. ऑफ कोर्स यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है कि बोडोलैंड में जो हम देखते हैं जो आसाम में है, it has more than 40 members because ये बोडोलैंड ये एरिया बड़ा है, that is why more numbers and ज्यादा subjects भी है, 39 subjects के powers हैं इन पे. Now कौन से laws ये देख रेख कर सकती है with regard to the law making, जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग दैट इज यू सी ट्राइबल्स को जो अफेक्ट करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है. वी टॉक अबाउट हेल्थ, सैनिटेशन, मैरिज, डिवोर्स, ओके, सो कस्टम्स, उनके माइनिंग, इनमें दे कैन बी आस्क्ड व्हाट इज देयर ओपिनियन बिफोर गेटिंग द मेन लॉ, ठीक है. सो दे हैव लेजिस्लेटिव, जुडिशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा हम देखते हैं ये ADCs का पावर ज्यादा होता है. व्हाई? बिकॉज दे आर very selective in ensuring what can be added, what are the new laws that we need to keep. Now Ladakh is fighting for this specific 6th schedule. तो क्या लद्दाख में 6th schedule अप्लाई हो सकता है? Is that a possibility? Let us quickly see. Now लद्दाख क्यों चाहता है, पहले ये देखते हैं. लद्दाख चाहता है बिकॉज August 5th 2019 हम देखते हैं लद्दाख जो पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट का पार्ट था, इट बिकेम अ यूनियन टेरिटरी. बट यूनियन टेरिटरी तो ठीक था, इट वाज मेनली विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो इनको लगता है कि ये जो है हमारे डिमांड्स को निग्लेक्ट किया जा रहा है, ओके, बिकॉज जम्मू कश्मीर के पास है लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे पास नहीं है, ठीक है. सो वी आर reduced with regard to our powers. The second thing हम देखते हैं, ये एक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड रीजन है जो हमेशा उनको लगता आ रहा था कि जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है इट वाज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय द मेजर रीजन्स ऑफ कश्मीर एंड जम्मू. तो इनके जो डिमांड्स है, जो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड जो लोग हैं यहाँ पे जो लेह में है, दे वर डिमांडिंग ऑल्सो UT स्टेटस फॉर मोर पावर्स एज वेल फ्रॉम द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट. बट कंसर्न्स और भी ज्यादा हुए जब जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेचर मिला, लेकिन ये तो लद्दाख बना UT, बट इट डिड नॉट गेट अ लेजिस्लेटिव असेंबली. अर्लियर हम देखते हैं 4 MLAs हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर असेंबली. नाउ ये ब्यूरोक्रेट्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे ज्यादा पावर या कंट्रोल जमाती है. फर्दर लैंड, जो जॉब्स है, यहाँ पे जो डेमोग्राफी है ये अफेक्ट हो सकती है, राइट, बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो प्रोटेक्शन. जैसे हमने देखा 6th शेड्यूल में ये प्रोटेक्शन है, ऐसे ही आप कस्टम्स और सब लेके नहीं आ सकते. सो ये थिंक दैट दे आर कस्टम्स एंड लॉज एंड जॉब्स एंड डेमोग्राफी, दे मे गेट अफेक्टेड बिकॉज दे आर जस्ट अ UT अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ अभी सिर्फ 2 काउंसिल्स हैं called as Leh and Kargil Hill Council. इनके पास है पावर्स बट बहुत ही लिमिटेड पावर्स है, नॉट एज ह्यूज एज द 6th शेड्यूल, ठीक है. सो इनको चाहिए कि ये प्रॉपर 6th शेड्यूल स्टेटस मिले. नाउ हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2019 में कहा था कि यस होना चाहिए 6th शेड्यूल का पार्ट, लद्दाख शुड बी 6th शेड्यूल पार्ट. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन देखो, ट्राइबल पॉपुलेशन सेल्फ इज 97%, ठीक है. और लैंड परचेज रिस्ट्रिक्शन फॉर आउटसाइडर्स होना चाहिए, दैट मीन्स डोंट अलाउ आउटसाइडर्स टू टेक अप लैंड देयर. कल्चरल हेरिटेज प्रमोट करो, उनका कल्चर जो स्पेसिफिक है, उनकी ट्रेडिशंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करो, दैट वाज द एम. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? क्यों 6th शेड्यूल में नहीं हो सकता? एक तो है कि ये जो 6th शेड्यूल है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ओके. स्पेसिफिकली अगर हम देखें कुछ स्टेट्स तो आते भी नहीं है, जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जहां पे है ट्राइबल मेजोरिटी बट दे डोंट कम. सो इट्स ओनली स्पेसिफिकली फॉर 4 स्टेट्स. 5th शेड्यूल एक है दैट इज मेनली फॉर आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट,
ठीक है। आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट में अगर हमको अगेन वी नीड टू मेक समथिंग लाइक एडवाइजरी ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल। 5th शेड्यूल में यू हैव ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, TACs बोलते हैं इनको, ठीक है। सो 6th शेड्यूल में ADCs हैं, 5th शेड्यूल में TACs हैं। तो लेकिन ये सिर्फ आउटसाइड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हैं। तो आइडियली 5th शेड्यूल वाले डिमांड हो सकता था बिकॉज ये आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट है, बट 5th शेड्यूल में इतने पावर्स नहीं है एज वी सी ADCs के पास है इन 6th शेड्यूल। दैट इज व्हाई दे आर फाइटिंग फॉर 6th शेड्यूल। इज दैट क्लियर? नाउ अगर ये स्टेटस उनको मिलना है 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल का, दे वुड हैव टू पास, द पार्लियामेंट हैज टू पास अ अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संविधान को अमेंड करना पड़ेगा इफ दे हैव टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर रीजन अंडर द शेड्यूल। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा विद रिगार्ड टू लद्दाख डिमांडिंग फॉर इट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। तो हम देखते हैं अगले आर्टिकल में एक स्टैम्पीड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एक दुखद कहानी है कि हम देख रहे हैं कि एक रैली हुई थी इन अ प्लेस कॉल्ड करूर, ठीक है। और ये रैली किसकी थी? इट वाज पॉलिटिशियन टर्न्ड, सॉरी एन एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन जो है तमिलिगा वेत्री कजाकम, apologies if I'm not pronouncing it right, president and actor विजय, okay, तो इनकी रैली थी। तो क्या हुआ, जो लोग थे ये पेड़ पे चढ़े, okay, because they wanted to see the actor up close, but पेड़ से वो गिर गए। जब पेड़ से गिरे, people again panicked, डर गए कि अरे कौन नीचे गिरा, एंड एवरीबडी स्टार्टेड गोइंग, हुल्ला हो गया, इधर उधर भागने लगे, एंड दैट लेड टू मेनी पीपल लूजिंग देयर लाइव्स। एंड इट इज सेड कि 40 लोग इस इंसिडेंट की वजह से मर गए, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई they die, okay, medical condition क्या होती है? It is because there is no ventilation, okay, because ये इतना पैक्ड होता है कि आपका जो रिब केज है दब जाता है, so you are not able to breathe, ठीक है। That is another aspect. Of course, the secondary effect is क्या है कि you're trampled, है ना, कोई आपके ऊपर चला है, बहुत ज्यादा भीड़ आपके ऊपर चल रही है, so that creates like again a domino effect that again leads to the death of the individual. Now ये जो स्टैम्पीड्स हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली इस साल की बात करें, there has been so many incidents of stampedes in India, okay? तो आप देखो यहाँ पे एक पिक्चर कैसा रैली था and how bad it got. Now अगर हम देखें recent events of stampede, so जून की बात करें, remember IPL हुआ, बैंगलोर वन, बैंगलोर में हम देखते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आउटसाइड द चिन्नास्वामी स्टेडियम इन बैंगलोर, वहां पे 12 लोग मर गए, एंड मोस्ट ऑफ देम वर यंग बिकॉज दे वर कॉलेज स्टूडेंट्स वांटिंग टू सी क्रिकेटर्स, राइट। तो ये विक्ट्री परेड के कारण अगेन दे लॉस्ट लाइव्स। नेक्स्ट इज वी हैव इन शिरगांव विलेज, ओके, यहाँ पे एक टेम्पल यात्रा के टाइम पे बहुत सारे लोग मरे स्टैम्पीड में। दिल्ली रेलवे अगेन फरवरी की बात करें, 18 ऑफ देम डाइड। अगेन कुंभ प्रयागराज, कुंभ मेला के टाइम पे भी हम देखते हैं 30 लोग मारे गए। ओके, सो यू सी दैट स्टैम्पीड्स आर अ वेरी रेगुलर फीचर इन इंडियन रीजन। तो क्यों ऐसा है, हो रहा है? दूसरे कंट्रीज में भी होते हैं बट नॉट एज फ्रीक्वेंट एज वी सी इन इंडिया। दैट इज बिकॉज आर्टिकल ये भी कहता है कि रीजन इंडिया में ऐसा क्यों है, बिकॉज प्रॉपर सिविक सेंस नहीं है लोगों में, ठीक है, दैट इज वन मेजर इशू। सेकेंड इज विद रिगार्ड टू लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, जो पुलिस जो व्यवस्था करती है दैट इज नॉट इनफ एज कंपेयर, सो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टैकल सच अ ह्यूज क्राउड, एंड दैट लीड्स टू इवन फर्दर deaths, okay, even further injuries. तो that is another case. So proper एक है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने चाहिए, इनफ पर्सनल होने चाहिए, एंड लोगों पे इतनी समझ होनी चाहिए, इतना अवेयरनेस होनी चाहिए कि मान लो ऐसा कुछ हुआ, okay, you don't have to just run, right? You have to be aware of the surroundings that are happening. तो ये सब इस आर्टिकल में बताया है. So that is the general summary. Let's quickly understand to the next article. अगला आर्टिकल I'm just going to give you a quick understanding. छोटा सा आर्टिकल है with regard to मोटोक कम्युनिटी. यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि मोटोक कम्युनिटी ये कौन से स्टेट से है. Now this is mainly the indigenous people from Assam.
तो ये क्या है, ये डिमांड कर रहे हैं द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, टॉर्च लाइट प्रोसेशन किया है आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, एंड वो चाहते हैं कि दे वुड वांट टू एंटर इनटू द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस एज वेल एज अपग्रेड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ऑटोनॉमस इन द 6th शेड्यूल फ्रेमवर्क में। ओके, दे वांट टू गेट their own autonomous district councils. Okay, so all of that upgrade करना चाहता है with regard to the framework. 6th schedule already हमने discuss किया। यहाँ पे you have to know कि with regard to adding scheduled tribe status, ये कौन करता है, ठीक है, remember that is done by the president। और अगर ये लिस्ट को अमेंड करना है, लिस्ट अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट डज इट। Okay, so this is something that you have to remember. Now you have to tell me under which article of the constitution does this scheduled tribe status change is written. तो again I'm repeating once again, अगर scheduled tribe का status देना है किसी community को तो ये दिया जाता है by the president. ओके, एंड अगर यही लिस्ट को अमेंड करना है, चेंज करना है, निकालना है किसी ग्रुप को, तो वो करता है द पार्लियामेंट। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर बेस्ड ऑन दिस। अगला आर्टिकल जो हम देख रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर के मन की बात के बारे में है। यानी वी नो दैट एवरी नाउ एंड देन प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन अंडर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मन की बात। तो इसमें हम देखते हैं कि मन की बात में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट, कि यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो फर्स्टली ही टॉक्ड अबाउट द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS के बारे में, जो 100 साल पूरे हुए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। 100 years of the RSS Foundation. Who started the RSS? It was founded by Dr. KB Hegdewar. ठीक है, this was on Vijayadashmi in 1925. So ये important है। Now, 1925 में why did he start it? Because back in the days जब colonial rule हुआ करता था, India did not have an identity with regard to, मतलब हमारे पास जो identity है, जो confidence है, वो इतना ज़्यादा नहीं था। So इसमें यहाँ पे to create that sort of awareness among the people, okay, we see that Hegdewar started this. After that it was continued by Guruji MS Golwalkar, ठीक है, एंड यहाँ पे emphasize भी किया था service, selfless service, right, and they are also considered as the first responders जब भी कोई natural disasters होता है। The RSS volunteers have always uplifted the spirit of nation first. नेक्स्ट हमने देखते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, he also talks, this is the second issue, ठीक है, he also talks about 2 Indian Navy women officers। तो ये 2 Navy women officers के नाम कौन से हैं? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। तो इन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर, नविका सागर परिक्रमा के अंदर, दे हैव सर्कम्बुलेटेड द ग्लोब, मतलब पूरा एक ग्लोब का चक्कर लगाया, 50,000 किलोमीटर्स वोयाज इन जस्ट 8 months इन INSV वॉट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से वेसल में इन्होंने पूरा चक्कर दिया था, सी वोयाज किया था, ये आपको बताना है। प्रोग्राम का नाम है या प्रोजेक्ट का नाम है, ऑपरेशन का नाम है नविका सागर परिक्रमा। Now why did he name these officers? Because नवरात्रि के अवसर पे he's talked about शक्ति, okay, talked about women resilience, okay, women, तो इसके लिए he has given this particular aspect. इन्होंने already और एक बात की with regard to छत inclusion in UNESCO heritage लिस्ट। तो हम देखते हैं कि 15 ऐसे यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट है which talks about intangible culture, जो एक्सप्रेशन है, ओके, तो यहाँ पे यूनेस्को रिकॉग्नाइज करती है। आई हैव डन दिस इन अ कपल ऑफ डेज अगो इटसेल्फ। तो आई थिंक अबाउट लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था अबाउट यूनेस्को हेरिटेज एंड छत इंक्लूजन होना चाहिए, ये भी डिस्कस किया था। तो इसमें Prime Minister is also pushing this कि yes, it should be included. This festival that is mainly celebrated in eastern part of India, इसको भी include करना चाहिए, ये कहा गया है। And he also talked about somebody else की मन की बात। ना किसकी मन की बात की है? इनके जो मित्र है, that is Giorgia Meloni. She is the Italian Prime Minister. तो इन्होंने आपका एक खुद का बुक लिखा है जिसका नाम है I am Georgia. I'm writing this because this may not be visible to you. My roots
माई प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो दिस इज द वर्क ऑफ जॉर्जिया मेलोनी। एंड इंडिया के जो इंडियन एडिशन में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने फॉरवर्ड लिखा है। okay, जो पहले लिखते हैं ना फर्स्ट पेज में, सो दैट इज व्हाट इज रिटन। द पब्लिकेशंस आर डन बाय रूपा पब्लिकेशन। सो सिमिलरली फॉर यूएस एडिशन, ओके, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने लिखा है। इंडिया के एडिशन के लिए नरेंद्र मोदी लिखते हैं, एंड ही हैज गिवन सम इंफॉर्मेशन। ही इज टॉक्ड अबाउट दैट एज वेल इन हिज ओन रेडियो ब्रॉडकास्ट। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज आर्टिकल्स देखे हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल न्यूज एंड सो ऑन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।